So this is class number 2, or I would say lecture number 2 for your subject, which is named as Basics of Electronics Engineering. As I told you already that this part belongs to the digital electronics part of the subject of electronics and communication. So you can find the headings which are similar to digital electronics. Okay. In last class we just went through with the basics of number system, and thereupon we discussed one of the types of conversions. जहाँ पे हमने देखा how we converted a decimal number to any other number. For that we had two parts. One was the integer part. Integer part में कहाँ से आंसर लिखना होता है? क्यों? क्योंकि इंसान है वो छोटे से बड़ा होता है. एंड जो फ्रैक्शन पार्ट है उसमें आंसर कहाँ से लिखना है? क्यों? जो कमाल पे जाती है वो ज़वाल पे भी आती है. ठीक है? Anyways, let's remember this rule and let's go for the second type of the conversion, which is others to decimal. We again have a universal method. अगर कोई भी number system है, which is say denoted as, for example, which is denoted as x, y, z dot a, b, c, whatever. And इसकी बेस है r. इसकी बेस है r. ठीक? तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा? जो इसका इंटीजर पार्ट है x, y, z, पॉइंट a, b, c, जो उसका इंटीजर पार्ट है, उसका जो लास्ट डिजिट है, मैं यूज करूंगा फॉर्मूला z इनटू r, जो इसकी बेस है रेज पावर 0, प्लस y इनटू r रेज पावर 1. समझ आ रहा है? आइज ऑन बोर्ड, आइज ऑन बोर्ड. एंड x इनटू r रेज पावर 2. All are not here. I want everyone from the class to answer. Reason being, imagine this, that I am teaching you only in the class. बाकी सबको छोड़ दो. So I want you to answer me. When I am asking something, I am not asking the topper, or I am not asking only the one who is very dull, maybe, according to the situation. I am asking every one of you, and you should answer me, not your friend, and your friend will not answer on your behalf. Okay? Is that clear? Fine. So then I have this point. When I specifically ask someone like this or this or this, then only he or she will answer. But when I say generally, then everyone should answer. So a into r raised power minus 1 in plus. Any guesses? B into r raised power minus 2. Excellent. Plus C into r is for. That's it. So I think you got the general formula. जो भी कोई base होगी जिसमें वो number represent किया गया होगा. When I am trying to convert that to decimal, I will use this simple formula. जी? X into r plus. Okay, first term यहाँ पे. हाँ. Right. Now let's go to an example very quickly. Example 1. जितना clear notes होंगे उतना अच्छा है, भूलना नहीं इसको. Example 1. I have to convert a binary number to decimal number. I have given the binary number as 10011.11. This is a binary number. I have to convert it to a decimal number with base 10. What is the formula? Let's do it. The formula is 1 into 0. Okay, जो last digit है वहां से 0 शुरू करना है. Plus 1 into 2 raised power 1 plus 0 plus 0, because ये 0 है, फायदा क्या है लिखने का. लेकिन 2 raised to power 1, 2, 3, 4.
2 raised to power 4 into 1. Do you get my point? समझ आया? इसको समझ नहीं आ रही तो है 1 2 इस फॉर्मूला को देखो आइज ऑन बोर्ड, जिसको समझ नहीं आया, जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद जो पहला डिजिट है उसका जो पावर आता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर या प्लेस वैल्यू, जिसको हम 10th में कहते थे, वो आएगा r रेज़ पावर 0। जो इसकी बेस होगी, जिस तरह बाइनरी की बेस है 2, तो उसी बेस को हमने लिया 2 पावर 0 रखा, ओके। प्लस किया हमने जो ये वाला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट, इसका जो नंबर वहां पे है वो नंबर इनटू बेस रेज़ पावर 1। बेस 2 है तो रेज़ पावर 1, जैसे यहां पे बेस रेज़ पावर 1, ठीक है। अब तीसरा डिजिट है 0 इनटू बेस रेज़ पावर 2, लेकिन एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 0, सो इसको मैंने सीधा 0 लिखा। उसके बाद 0 इनटू बेस रेज़ पावर 3, ठीक है, लेकिन चूंकि मल्टीप्लाइड बाय 0 0, सो 0 लिखा, प्लस नंबर इनटू बेस रेज़ पावर 4। मुझे पता है आपको अभी भी समझ नहीं आया, लेकिन इसको रिवीजन की जरूरत है और मैं कल आपसे पूछूंगा, ठीक है। दिस इज नॉट अ लैक ऑफ इंटेलेक्ट, ठीक है, जो ये समझ नहीं आ रहा है ना, जिनको समझ नहीं आ रहा, दिस इज नॉट लैक ऑफ इंटेलेक्ट, दिस इज लैक ऑफ मेबी अटेंशन। योर ब्रेन इज नॉट obliging to you to be attentive 100%। ये कोई वरना मसला, ये 10वीं जमात की बात है, ये 10वीं जमात की बात है, किस क्लास की? And I hope you have passed them, right? Then you should understand this in a minute. Problem क्या है? Attention की कमी, ठीक है, उसको improve करो, ओके। बस आपको नहीं, उसको बोलो, ठीक है, ठीक है, मैं तो नहीं समझ। अच्छा, अब यहाँ की तरफ मुझे जाना है, जो पॉइंट वाला साइड है, पॉइंट वाले साइड के लिए नंबर आइज ऑन बोर्ड, अब आपको समझ आएगा, सुनो, जो नंबर वहां पे होगा मल्टीप्लाइड बाय बेस रेज़ पावर -1, क्योंकि यहाँ से 0 1 2 3 हो रहा है, यहाँ से 0 -1 -2 -2, समझ आया? अब आप जवाब दो इस सवाल का, यहाँ पे क्या आएगा? नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट नंबर 1 है, जवाब दो, आप दो 1 सब नहीं, बस ये 1 इनटू ये सब नहीं, हाँ 1 इनटू 2 रेज़ पावर, लाउडर प्लीज, -3 क्यों? क्योंकि वो r रेज़ पावर 3 है यहाँ पे, इसलिए बेटा नहीं, यहाँ पे पहले -2 भी है ना, हमने बस यहाँ पे -1 वाला लिखा, -2 लिखना है ना, 2 रेज़ पावर -2, ऐसा समझ। और अगर इसके और 2-3 डिजिट हो तो हमें आगे लेके चलना है, वरना वहीं पे रुकना होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? ओके, सो व्हाट इज द आंसर, कैन यू टेल मी प्लीज? द आंसर इज फाइनली 1 मिनट। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रेज़ पावर 4 कितना हुआ? 16 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 2 रेज़ पावर 1 इज 2 प्लस 2 रेज़ पावर 0 इज, हाँ आप बताओ, 2 रेज़ पावर 0 इज केले कदरन कान 0 क्या हो सकता है? ओके, पॉइंट 2 रेज़ पावर -1 0.5 प्लस 2 रेज़ पावर -2, इस पार्ट को ऐड करो, ये बनता है 19 पॉइंट, इस पार्ट को ऐड करो, ये बनता है 7.75, ठीक है, ठीक है। Sabidu, let's go to the next example very quickly. Example 2. Example 2 is I have a number like say 57.4. इसकी पहले ये कन्वर्शन कौन सा है? ये है ऑक्टल, आइज ऑन बोर्ड प्लीज, ऑक्टल टू डेसिमल, आइज ऑन बोर्ड, पहले ये हेडिंग लिखिएगा। ऑक्टल टू डेसिमल है तो बेस क्या होगी? एवरीवन बेस क्या होगी? 8, एक्सीलेंट। 8 बेस होने के लिए अब मुझे किसी डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, उसकी बेस होगी 10। सो लेट्स डू इट विद मी। 7 बिकॉज़ ये नंबर 7 है, इनटू जो उसकी बेस होगी 8 रेज़ पावर 0। 0 क्यों? बिकॉज़ एक पॉइंट के बाद पहला डिजिट है, दूसरा वाला पार्ट 5
into 8 raised power 1, ये दोनों आपसे प्लस होगी, अब पॉइंट वाला साइड 4 जो डिजिट यहाँ पे होगा into 8 raised power, आप बताओ 8 raised power, no, you're still not vibrating with the rhythm. शाबाश, try some more attention. शाबाश, असल दिया कौन है ना? Answer क्या बच्चों? Answer is 47 point. सर ये फॉर्मूला के वापस बोर्ड पे, हाँ? कहाँ है फॉर्मूला कहाँ है? बोर्ड आप लिखिए क्या मसला है? Okay then. Next one very quickly. हो गया ये? Is it clear? आंसर लिख लें यहाँ पे भी, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों जगह पे आंसर लिख लें. Next one is hex to decimal. Example 3. Hex to decimal. Imagine I have a number 69.4 which is with base, hex की base क्या होती है? 16, right? I have to convert it into decimal with base 10 obviously. So please do it on your own. Just do it. चलो बेटा चलो क्या करना होता है? Base क्या है? 9 into 16 raised power 0. मैं सर्च की 16 0 plus वो लेफ्ट सिस्टम ये और plus 16 क्या plus point raised power minus 1 क्या बात पूरा समझ? Okay. Add this part separately and add this part separately. One side पूरा हो. Solve. ये बस math solve. Right. 5 In one voice, the answer is excellent. Yes, the answer is 105.25. किसी ने नहीं किया? Raise your hand. जिसको नहीं आया raise your hand. जिसको नहीं आया raise your hand. आपने किया? खड़े हो जाओ. खड़े हो जाओ. हाँ. आ जाओ इधर सामने. जल्दी से. Yeah, since you can do it. That's it. Nathaversus band. Yes, right. Solve this. 69.4 को solve करो जल्दी से. So next example is example number 4. यहाँ पे हम कर रहे हैं hex to decimal. I have a number written as BAD in hex. I have to convert it to decimal. क्या रहेगा प्रोसीजर बोलिए? इसमें दो काम करने हैं. पहला काम, क्योंकि डेसिमल में d का वैल्यू होता है कुछ, d जो है d है ना, d ABCD ये हेक्स में है, तो डेसिमल में d होता है 13. तो पहला काम वही नंबर into 16 raised power 0. Then a होता है डेसिमल में कितना? आइज ऑन बोर्ड प्लीज. a होता है डेसिमल में कितना? 10. So 10 into 16 raised power 1. b होता है डेसिमल में कितना? 11.
Yeah, Lotus Samara, Mr. Pakana. So then we just have to add them up. So the answer is 2989 is the final answer with base 10. Do not forget this. Okay? So this is how we solve hexadecimal. बाकी जो है बाकी किसी और में ये इस तरह के एग्जांपल्स नहीं है जहाँ पे नंबर्स नंबर्स एक और एग्जांपल लिखिए एग्जांपल 5 CAFE 16 अब मुझे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है आपको क्या पता चल रहा है कौन सा नंबर है ये कौन सा नंबर है बोलो नहीं आप गलत जवाब बोलो ये कौन सा नंबर आपको लग रहा है क्यों बोलो ना आप जो सही जवाब दे रहे हो जस्ट से इट लाउड जल्दी से गलती कर गलती नहीं है वहां पे 16 हाँ बाद में जाए बाकी सारे आप बोलो अपना जवाब डज नॉट मैटर होगा तो सही 16 यहाँ पे 10 है तो कौन सा इसको किस में कन्वर्ट करना है हाँ कन्वर्जन क्या है आप बोल रहे हो गलती आपकी दो है पहला सही कॉल था ये कॉल है ये नर्म कॉल की फॉर्म नहीं दैट उतना टाइम नहीं है हमारे पास आप नर्म कॉल बनाओगे फिर ये एग्जांपल 6 23.4 इसकी बेस है 4 इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में कर लीजिएगा So we move to the next section. We move to the next section, which is third section is octal to binary. To convert, लिखे जरा to convert octal to binary, each digit. To convert octal to binary, जल्दी थोड़ा देखिए, वो क्वेश्चन आप घर में कीजिएगा. To convert octal to binary, each digit is represented each digit of each octal digit is represented in 3 bits using 3-bit binary format. To convert octal to binary, each octal digit is represented using 3-bit binary format. मतलब क्या है इसका? कोई नंबर आपको suppose octal जो है हमारा octal is 8, right? And binary is actually convert this octal into binary using binary we will have to use 3 bits. Do you get my point? To convert this octal digit into binary we would need the value of 2 has to be 3 because 2 into 2 into 2 is 8. So that's why we use 3 bits. यहीं पे एक और क्वेश्चन आपसे अगर मेरे पास हेक्स होगा हेक्स की बेस है 16
हेक्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या यूज करूंगा? 2 रेज़ पावर 4। एक्सीलेंट। तो जब हेक्स टू बाइनरी करना पड़ेगा, आई विल हैव टू यूज 4। गोली मारो उसको, कौन है वहां से? रबड़ की नहीं, खिलौने वाली। अच्छा, 2 रेज़ पावर 4 is the number of bits that I have to use at that time. खैर ये तो बेल की बात है, लेकिन फिलहाल आपके जहन में रह गया। Okay. Now the question is, example 1 हमारे पास है। Example 1 is 374 octal to binary। अब मुझे लिखने की जरूरत, अब आपको समझ आ रहा है ना? octal to binary। Can you please do it? मेथड क्या है? मेथड देखो, वो मेथड बस है डेसिमल टू एनी और एनी टू डेसिमल। अब उनको भूल जाओ। क्लियर योर माइंड, फ्लश योर माइंड। नाउ वी हैव अ न्यू मेथड। क्या हमने मेथड का? क्लास प्रिंसिपल मेथड मंजू वासा मेथड जी मेथड each digit is represented using 3-bit binary। मतलब जनरली हमें 4 को लिखना है ऐसे, 7 के लिए भी 3 ही बिट्स यूज करनी है। जनरली 3 जो हम लिखते हैं ये ऐसे लिखते हैं बाइनरी में, 1 1 1 को 3 बाइनरी बाई होता है इसमें बाई। ओके, इंपॉर्टेंट डिस्कशन बिफोर वी मूव टू दिस। देखिए, ये अगर 0 है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 0 ही है, ठीक है। ये अगर 1 है, इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 1 ही है। अब मसला हो जाता है जब 2 है, मैं डेसिमल की बात कर रहा हूं। ये जब 2 है, 2 को हम इस तरह लिखते हैं बाइनरी में 1 0। अब 3 है, 3 को हम लिखते हैं 1 1। 4 लिखना है तो उसके लिए कम से कम 3 बिट चाहिए, 1 0 0। 5 लिखना है तो उसके लिए 1 0 1। 6 लिखना है तो दैट इज 1 1 0। 7 लिखना है तो दैट इज 1 1 1। अब जब 8 लिखना है, 8 के लिए अब 3 बिट से काम नहीं चलेगा, बिकॉज 3 बिट्स की जितनी भी कॉम्बिनेशन बन सकती है हमने सारी खत्म कर ली। we'll have to use one more bit, we'll have to use one more bit, and we write 8 as 1 0 0 0। अब 9 जब लिखना हो तो 1 0 0 1। एक छोटा सा असाइनमेंट आप सबके लिए, अपनी नोटबुक से लिखिए। ये नंबर्स आप 1 to 15 इस तरह लिखेंगे, 9 या 15 तक बराबर अपनी नोटबुक पे कंप्लीट करेंगे और मुझे बताएंगे 15 को लिखने के लिए कितनी बिट्स चाहिए मैक्सिमम। ये आपकी नोटबुक पे होना चाहिए साफ साफ। राइट द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर ऑफ 0 to 15 का बाइनरी इक्विवेलेंट। एक काम कर लीजिए, इसके साथ हेक्स भी लिख लीजिए, यहाँ साइड में हेक्स भी लिख लीजिए, क्योंकि हेक्स के लिए 0 to 9 तो सेम आएगा, 10 के बाद आएगा A B C D, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, आपका जो आप कॉलम हेक्स के ऐड अगर ऑक्टल दिख करो उससे जाने को, ठीक है, मतलब ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ दिस एंड दैट। चलो हेक्स तक काफी है, हेक्स टू दिस बाइनरी है, मतलब डेसिमल का 2 हेक्स का 2 के बराबर होगा। हाँ ये है ना, हेक्स और डेसिमल 9 तक सेम, 10 से डिफरेंट हो जाते हैं। उसी तरह जिस तरह ऑक्टल के 7 तक, डेसिमल 7, ऑक्टल 7 और हेक्स 7 सेम है, ऑक्टल में 7 के बाद चेंज आ जाएगी। ऐसा समझ, ये आंसर हो गया नहीं। अब 3 हम जनरली कैसे लिखते हैं, 1 1, क्योंकि आपने देखा 2 ही बिट्स लग रही है। लेकिन क्योंकि मैं ऑक्टल को कन्वर्ट, क्योंकि मैं ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू बाइनरी, सो मुझे ऑक्टल नंबर की वजह से 3 बिट्स यूज करनी पड़ेगी टू रिप्रेजेंट दिस। सो द आंसर इज 0 1 1 1 1 1 1 0 0। ओके, मैंने इससे पहले कहा ऑक्टल जो नंबर होता है उसका वैल्यू, बेस का वैल्यू होता है 8। अब मुझे ऑक्टल को कन्वर्ट करना है इनटू बाइनरी,
उधर बेस है 2, ठीक. In order to convert this into this, I will try to represent this 8 using the base of 2. मतलब I will try to equate. So we know that 2 raised to power 3 is equal to 8. So the equation satisfies. In order to represent this octal number using binary, I will have to use 3 bits to represent each digit. That's why 4 is like this, it will वैसे भी ऐसा ही 3, and that's why 3, which could have been designated only using 2 bits. I use 3 bits. ठीक है? Okay? अब रिवर्स करना हो तो ये तो एग्जाम्पल 1 हो गई. एग्जाम्पल 2. एग्जाम्पल 2 में कोई नंबर है ऐसे, ये एक बड़ा सा बाइनरी नंबर है ना, ठीक है. इस बड़े से बाइनरी नंबर को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें? ऑक्टल में. जो ही मैंने ऑक्टल देखा, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए 2 raised to power 3 equal to 8. सो मुझे जो ये नंबर है इसको 3 की ग्रुपिंग करनी है और काम हो गया. सो दिस नंबर इज 3, दिस नंबर इज 7, दिस नंबर इज 4. तो यही नंबर आपका वापस आ गया. ठीक है, समझ आ रहा है? किसको समझ नहीं आ रहा? रेज योर हैंड. आई नो देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन द क्लास, उनको समझ नहीं आ रहा. रेज योर हैंड. 1 मोर. कोई और समझ आया? उठो, खड़ा आ जाओ. So the next one is now hex to binary. So hex to binary है. हेक्स की बेस क्या है? 16. बस ये बताएगा, बाकी सब लोग खामोश हो जाए. हेक्स की बेस है 16. मुझे कन्वर्ट किस पे करना है? बाइनरी में. बाइनरी की बेस क्या है? 2. बाइनरी की बेस क्या है? 2. अब क्या रूल क्या मैंने कहा, मुझे अब इसको इक्वेट करना है. सो क्या करूं मैं? अब 2 रेज़ पावर क्या करूं कि वो 16 आ जाए? बस ये साथ में बोलेगा 4. हाँ, 4 मैंने किया. इसका मतलब ग्रुपिंग कितने बिट्स की करनी है? 4. Excellent, absolutely correct. So you got it right. So as an example, now you should be able to do it. Now stand up, please, again. Come here. पता है जबरदस्त पॉज होता है. So this is correct, right? You got your point? आपको समझ आया? So this is like 8 9 होता तो 1 0 0 0 1 0 0 1. ठीक है, हो गया ये आपका हेक्स टू बाइनरी. अब बाइनरी टू हेक्स करना हो तो रिवर्स. एक मिनट. बाइनरी टू हेक्स, ये आपका बाइनरी नंबर है, इसको हेक्स में कन्वर्ट करो. चलो जी, सादत करो. अब आपका दिमाग का तो मुझे पता चलेगा. आपके पास दिमाग है कि नहीं पता चलेगा. बाइनरी टू हेक्स क्या बात? डू इट क्विकली. बिट दी हुई है, वो एक ही बिट दी हुई है, लेकिन हमने कहा बाइनरी को हेक्स में कन्वर्ट करने के लिए we have to go for grouping of 4. So we will do something called as appending of zeros. Zeros append करने हैं. Append हो गया attach करने हैं. क्योंकि यहाँ से अगर मैं 1000 जीरो भी अटैच करूँ 1 ही रहेगा ना. इसके लेफ्ट में मैं अगर 1000 जीरोस भी ऐड कर दूँ ये 1 ही रहेगा. So what I will change the shakl surat of this number to 1 0 0 0. Okay, and from this side it will become 1. Also I will have to append zeros. 1 0 0 0. Is that okay? यहाँ से भी मैंने जीरो अपेंड कर दिए, यहाँ से भी, लेकिन यहाँ से इसका वैल्यू ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा और होना भी चाहिए. Because the hex equivalent of this number is
1.8, ये 8 है बाइनरी में। आया समझ? इसको नहीं समझ आया तो इस टाइम अपने दोस्तों से बात कर सकता है, ठीक है? 1.8 इज द करेक्ट आंसर। वो यूनिवर्सल मेथड है फॉर डेसिमल टू any other to decimal only. That is for decimal only. आया समझ? ये इसके लिए नहीं है। नहीं बड़े होना कोई बाइक मैं याद देखिए इसको सर ये है ना मान देखिए इसको तो लग माइंड सर हम उसको कंप्लीट चलो बोल पिछला वाला स्पेस में जीरो है लेकिन ये तो ओरिजिनल फॉर्म है, जैसे हमने मान लिया पानी की बराबर लेकिन हमने चार्ज की बराबर वही करता है what we are trying to represent in different number format लेकिन हम ओवर ये मैं आपको जो मैंने यहाँ पे बोला ना जो मैंने यहाँ पे असली पॉइंट बोला ना आपको जो मैंने ये पॉइंट बोला ये मैंने खाम बोला मुझे नहीं बोलना चाहिए था ये आपसे कंफ्यूज हो गए सिंपल याद रखना है अगर आपके पास ये नंबर बाइनरी है अच्छा आप सबके लिए क्वेश्चन है ये नंबर है बाइनरी इसका इक्विवेलेंट हेक्स आगे ये ओके अब यही नंबर होता शall I erase this अब यही नंबर होता और आपको उसका इक्विवेलेंट निकालना होता ऑक्टल eyes on board please यही नंबर होता आपको eyes on board यही नंबर होता आपको उसका इक्विवेलेंट ऑक्टल निकालना होता तब क्या करते हैं आप जरा आप बताइए राइट वाले ऑक्टल में निकालना होता तब मैं 3 बिट्स खाली यूज करता है समझ मतलब 1 would be represented as 001 मतलब दो ही जीरो ऐड करने पॉइंट this 1 would be represented as 00 so then this becomes 1 point I do not have to think about mathematics here कि तो mathematics इंटरेक्ट हो गया ऐसे तो इसका नहीं you just have to remember not कितने zeros अटेंड करने इस केस में ऑक्टल के केस में 3 बिट्स होनी चाहिए नेसेसरी पहले तब जाके उस बाइनरी को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं तो ऑक्टल 1.100 अलग नंबर है ना 1.100 हां then 1.1 तो दोनों का सेम ही आएगा ना ऑक्टल में मैं मत ले रहा हूँ इस नंबर को बेटा मैं इस नंबर को नहीं ले रहा हूँ इस नंबर का इक्विवेलेंट ही है आया समझ when it is 1.1 in binary if you convert that to octal उसका आएगा 1.4 जो मैं आपको in between दिख रहा हूँ ना वो मेथड है how to convert it this will obviously be the same आप सही बता रहे हो 1.4 उसका भी होगा 1.4 इसका भी होगा ठीक है because this 1.1 means actually 1.1 चला डेसिमल नंबर उससे छी आ सकता है क्या धन्यवाद लोगों का जिससे डेसिमल नंबर के अंदर सपोज 29.625 00000 is same as 29.625 isn't it yes sir so what are you asking it is 1.00 is same as this is no different from this but yes for you to understand ये 4 तो बुजुर्ग में ये 4 कहां से आया बुजुर्ग ये सर 4 कहां से आया नहीं पूछते सर क्वेश्चन असल में ये था कि अगर वहां पे 1 लिखा होता और 10 लिखा होता डेसिमल में तो 1 रिप्रेजेंट करता है 1 को 10 रिप्रेजेंट करता है 10 तो डेसिमल में नंबर चेंज होते हैं ना मतलब क्या हो गया तब यहां पे बेस होती ना 10 तब यहां पे बेस होती ना 10 तो सर ये बाइनरी की बात कर रहे हैं बाइनरी की बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं वहां पे मतलब डेसिमल के बाद मैथमेटिक्स में कितने भी जीरो आए तो हम वो कंसीडर नहीं करते लेकिन बाइनरी में अगर वहां पे 1 है तो वो रिप्रेजेंट करेगा डेसिमल में 1 और अगर वहां पे 1 0 ऐड किया जाए तो वो रिप्रेजेंट करेगा वो नंबर ही चेंज होगा वही मैं कह रहा हूं सर ये जो आप बोल रहे हैं ये चेंज तब होगा जब मैं उस नंबर को फिर से बाइनरी में ही देखूंगा मगर मैं उसको नंबर को बाइनरी में नहीं देख रहा हूं मैं उस नंबर को ऑक्टल के आईने में देख रहा हूं मैं उस नंबर को हेक्स के आईने में देख रहा हूं और जो जो आगे बढ़ता जाएगा तो उतने जीरोस बढ़ते जाएंगे
What you are saying that is okay when it is only in binary to binary. तब तो मसला हो जाएगा and वो प्रॉब्लम होगा. Okay. अब देखिए, अब आपको ये सारी चीजें समझ आ गई है ना. बाइनरी टू हेक्स, eyes on board, this is an important point. अब आपको बाइनरी टू हेक्स, हेक्स टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी सब आ गया. अब क्वेश्चन आपसे है, दिस इज अ क्वेश्चन टू यू एंड दिस इज लाइक टाइप 4 एक्चुअली. टाइप 4 आप लिखिए इसके लिए. ये लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का. टाइप 4 है, टाइप 4 इज इफ आई हैव टू गो फॉर से ऑक्टल टू हेक्स. ऑक्टल टू हेक्स करना है, क्या करें? याद रखना, ऑक्टल टू हेक्स समझो ये ऐसे है, इन दोनों में आपस में लड़ाई हो चुकी है. ऑक्टल और हेक्स में आपस में लड़ाई हो चुकी है. नाउ दे नीड एन इंटरमीडिएट पर्सन टू एक्चुअली डू द कन्वर्शन. तो ये आपस में कन्वर्शन नहीं कर रहे हैं, इन्हें छोड़ दिया कन्वर्शन करना. सो ये क्या करते हैं, इन्हें अब बाइनरी को बीच में सहारा बना के रखा है एंड बाइनरी इनकी आपस में वो राब्ता कराता है. याद रखा, ऑक्टल और हेक्स की आपस में लड़ाई हो चुकी है और बाइनरी एक्ट्स एज अ मीडियम फॉर देम टू कम्युनिकेट, टू कन्वर्ट नंबर्स. ओके, so that means if I have an octal number which is given as, say for example 6 2 5 5, a very big number in octal, I cannot convert in hex. क्यों? क्योंकि इसकी आपस में लड़ाई हो चुकी है. ठीक है ना, याद रखना, याद रखने के लिए कह रहा हूँ, सच में नहीं है ऐसा कुछ है, एक कहानी है. पगावन में कहा सर वाई वाज वन से नहीं है आंसर, सर ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल की लड़ाई हुई उस टाइम वो थप्पड़ मारेगा एग्जाम में. ये नहीं बोलना ये कहानी उसको, लेकिन अंदर से बैक ऑफ द माइंड आपकी ये कहानी जरूर चलेगी. So octal to hex, hex to octal, not possible. What I will do as step number 1, I will use 3 bits to convert this octal into hex, because वही method है. Octal to binary. So इसका binary क्या आएगा? 6 से जरा स्टार्ट करते हैं. 1 1 0, उसके बाद 2 है 0 1 0, क्योंकि 3 बिट्स यूज करनी है ना. 5 का 1 0 1, फिर से 5 1 0 1, तो बाइनरी साहब तक ये पहुंच गया. अब बाइनरी कहता है कोई मसला नहीं, हेक्स को मैंने अपने साथ इंफॉर्मेशन लाई है, तुम बस इसको कन्वर्ट कर लो. हेक्स बोलता है चलो ठीक, इंफॉर्मेशन तो तूने लाई है, लेकिन तब भी ग्रुपिंग पहले 4 4 की बनाओ, तब मैं एक्सेप्ट करूंगा. ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं कहां आएगा, हमने 3 3 की ग्रुपिंग की है ना, अब आपको 4 4 की ग्रुपिंग करनी है. रुको 1 मिनट, अब 4 4 की ग्रुपिंग करो आप. ठीक है, तो 4 की ग्रुपिंग करने से ये बना 1 1 0 1 and 1 1 0 is how much in hex? 1 1 0 1 1 1 0 1, that is I think 13. तो पहले आप इसको 13 लिखे, पहले डेसिमल में करें. ठीक, this is 1 0 1 0 1 0 1 0 is 10. This is 1 1 0 0, that is how much? 12. ठीक है, तो हालांकि ये हम कर रहे हैं डेसिमल में, लेकिन ये आपके रफ के लिए, वरना एक्चुअली आपको सीधा इसको हेक्स ही लिखना है. तो ऑक्ट टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्स. हेक्स क्या है इसका? 13 का D A C. कैट वो आपने जो इससे पहले यूज किया था, वही कैट फिर से आ गया. ओके, अब अगर सवाल है हेक्स टू ऑक्टल का, हेक्स टू ऑक्टल में भी सेम बात है. हेक्स और ऑक्टल लड़ाई तो लड़ाई है ना, वो जारी रहेगी. सो आता ग्रुप तो हमें क्या तफरीका बोलते हैं. एक्चुअली एग्जांपल है Anyways, so I have to go for hex to octal. हेक्स नंबर लेना है हमें, कोई ले लीजिए जरा. चलिए इसी को लेते हैं, हेक्स को, कैट को ही लेते हैं. कैट ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना है इनटू हेक्स.
कैड को कन्वर्ट करना, सुनो सादर, ये कैड हेक्स नंबर है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, क्या मेथड में यूज करूंगा? क्योंकि हेक्स और ऑक्टल में लड़ाई है ना, कोई ट्रांजिशन नहीं कर, तो पहले बाइनरी में करेंगे। कैसे बाइनरी में करेंगे आप बताओ? हेक्स को बाइनरी में करना है, अभी मैंने इससे पहले वही मेथड पढ़ाया ना, यूजिंग ग्रुपिंग ऑफ, रादर यूजिंग 4 बिट्स। मैं इसको d को लिखूंगा यूजिंग ग्रुपिंग ऑफ d इज व्हाट 13, सो 13 का एक यूनिट आएगा 1101, फिर a को भी लिखूंगा यूजिंग 4 बिट्स, दैट इज 1010, c को भी लिखूंगा यूजिंग 4 बिट्स। इतना काम हो गया। अब मुझे इस बाइनरी नंबर को करना है, असली काम क्या है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो मैं इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आइज ऑन बोर्ड, इस बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए अब मैं 3 की ग्रुपिंग करूंगा, क्योंकि मेथड क्या है बाइनरी टू ऑक्टल यही है। तो लिखो क्या है, दिस इज 6, दिस इज 2, दिस इज 5, दिस इज 5 अगेन, दिस इज ऑक्टल। एक छोटा सा असाइनमेंट लिखिए जरा, एक छोटा सा असाइनमेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 2AD ये हेक्स में है, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। ओके, 2AD इसको आप अपने नेटफ्लिक्स से वगैरह देख लीजिएगा, ठीक है, जैसे भी आपको और ठीक है। With that we will stop in today's lecture and we will see each other in the next one.